আমাদেরকে কৃতার্থ করেন হযরত মাওলানা আব্দুল হাফিজ সাহেব দামাত বারাকাতুহু, যিনির ভাষণে হৃদয়ের সুর প্রত্যেক বাক্যে ছড়াবে জ্ঞানের নূর। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম, আম্মা বা'দ। ফাকাদ ক্বালা আল্লাহু তাআলা ফি কালামিহিল মাজিদ ওয়াল ফুরকানিল হামিদ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ফালাউলা নাফারা মিন কুল্লি ফিরকাতিন মিনহুম তা'iফাতুল লিয়াতাফাক্কাহু ফিদ-দীন ওয়া লিয়ুনযিরু কওমাহুম ইযা রাজা'ু ইলাইহিম লা'আল্লাহুম ইয়াহযারুন। وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ زندگی 2 دن ہو یا 100 سال گزر جائے گی، زندگی 2 دن ہو یا 100 سال گزر جائے گی، کندھے پہ ہو کملی یا شال گزر جائے گی، گر امیروں کی باقبال گزر جائے گی، ہم غریبوں کی ہم فقیروں کی بہرحال گزر جائے گی۔ جناب صدر محترم، علماء کرام اور عزیز طلبہ، میں بغیر کسی وارنٹ کے گرفتار ہو گیا ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ کی اس محبت کا، مجھے اس لائق سمجھا، اس قابل سمجھا کہ میں یہاں کچھ کہہ سکوں، پر حقیقت ہے کہ میں اس مبارک محفل میں اور علماء کے درمیان میں ایک ناچیز ہوں، کچھ کہنے کا قابل نہیں، لائق نہیں، پھر بھی آپ کا حکم سراکوں پر رکھتے ہوئے میں کھڑا ہو گیا ہوں۔ مختصراً میں ضرور اپنے بھائیوں کے ساتھ، طلبہ عزیز کے ساتھ میں کچھ کہنا چاہوں گا۔ طلبہ عزیز، آپ لوگ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ علماء بننے جا رہے ہیں۔ عالم بنانا یہ پوری امت مسلمہ پر فرض ہے، کیونکہ اللہ پروردگار عالم نے اس دنیا کو بنایا اور انسان کو بنایا، انسان کو ایک زندگی دی ہے، اس کو کچھ ادھیکار بھی دیا ہے، اس کو کچھ ہمت اور کچھ طاقت، کچھ اختیارات بھی دیے ہیں، اور یہ بھی کہا ہے اللہ نے کہ انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کی موت بھی اس کے ساتھ ہے، اور پیدائش سے لے کر موت کے درمیان جو ٹائم اور جو وقت ہے وہی زندگی ہے، اور یہ زندگی اللہ تبارک و تعالی نے امتحان کے لیے دیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ پروردگار عالم نے انسان کی رہنمائی کے لیے، ان کو راہ دکھانے کے لیے ماقبل میں، ہر دور میں اور ہر قوم میں ایک ہادی اور رہنما نبی اور پیغمبر بھیجا، اور آخر میں اللہ پاک پروردگار عالم نے آقا نامدار سرکار دو جہان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور یہ کہا یہ خاتم النبیین ہے، اس کے بعد کوئی نبی رہنما بن کر نہیں آئے گا۔ اور اللہ پاک پروردگار عالم نے قرآن پاک کو یہ آخری کتاب اور یہ فائنل کتاب کی شکل میں دنیا والوں کے سامنے رکھ دی، اور کیا کہا کہ یہ قرآن یہی سنویدھان ہے اور یہی کانسٹیٹیوشن ہے، یہی دستور ہے، اور اسی کی تفصیل اور اسی کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے آقا نامدار سرکار دو جہان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ان کے بعد اب وہ ذمہ داری علماء پر ہے، اس لیے تاریخ گواہ ہے کہ جب جب شیطانی طاقت اور باطل طاقتیں اس حق مشن کو دبانے کی کوشش کی ہے، نائبین نبی علماء کو دنیا والوں نے حقارت سے دیکھنا شروع کیا ہے، تب تب اس دنیا میں بہت سی پریشانیاں آئی ہے، لوگ پریشان پشیمان ہوئے ہیں، اور دنیا کے اندر بہت سے اتار چڑھاؤ۔ تاریخ گواہ ہے جس زمانے میں
इन उलमाओं की कदर रही है और जो उलूम नबूविया और इस्लामी उलूम की कदर मुसलमानों की निगाहों में और मुसलमानों के दरमियान दुनिया वालों में यह कदर रही है, तब तक दुनिया के अंदर अमन और शांति, भाईचारगी, तरक्की, मोहब्बत, उखुव्वत सब कुछ था। लोग अमन और इत्मीनान के साथ अपनी जिंदगी बिताई है। और जब जब भी इन उलूम की बेकदरी, उलमा की बेकदरी शुरू हुई है तो वहां बेचैनी, वहां गुलामी, वहां गैर तरतीबी शुरू हुई है। लड़ाई, फसाद, झगड़ा, बेचैनी सब कुछ शुरू हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूं अपने तलबा भाइयों से कि आप लोग नाइबिन नबी है, आप लोगों के जिम्मे में वो जिम्मेदारी आ रही है जो नबी पर वो जिम्मेदारी थी। पूरी उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई करनी है। आज शैतान चारों तरफ से लोगों को बहकाने के चक्कर में है, लोगों को दुनिया के लालच में और तरह तरह के नरगे में फंसाने की कोशिश कर रहा है और वो बातिल ताकतें चारों तरफ लोगों पर मंडरा रही है। आज उम्मत को बचाने के लिए उलमा को आगे आना पड़ेगा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज उलमा की तादाद दिन ब दिन घटती जा रही है, मदारिस इस्लामिया की तादाद दिन ब दिन घटती जा रही है और लोग मॉडर्न एजुकेशन के नाम से, फैशन के नाम से, तरक्की के नाम से लोग बातिल ताकतों के नरगे में फंसते जा रहे हैं, लोग लालच में जा रहे हैं। लेकिन अब मैं समझता हूं हमें माजी से सबक लेना पड़ेगा, अपने उलमा से, अपने अकाबिरीन से सबक लेकर हमें कमर बस्ता होना पड़ेगा, हमें तरह तरह की सलाहियतों से आरास्ता होना पड़ेगा। मैं मुबारकबाद देता हूं इस मदरसे के मुंतज़मीन, असातिज़ा किराम और तलबा इज़ाम को। आप हजरात की इस प्रोग्राम ने यह जाहिर किया है कि आप लोग शब-रोज मेहनत कर रहे हैं, तरह तरह की सलाहियतों से आरास्ता हो रहे हैं। असातिज़ा किराम यहाँ शब-रोज मेहनत कर रहे हैं। मैं अपने खुद को खुशनसीब समझता हूँ कि आपके एक मिशन के साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। और लोगों की एक गलत फहमी है कि मैं पहले यहाँ पढ़ाता था और मैं छोड़ दिया हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं समझता हूँ ये जो अंजुमन और ये जो मदरसा है ये सिर्फ एक जगह पर ये कोई महदूद नहीं है, ये एक मिशन है, एक सोच है, एक नबूवती मिशन के साथ वो आगे बढ़ेगा। और उसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों के दरमियान, लोगों की भीड़ में, मुसलमानों की भीड़ में आज भी हम उस पैगाम को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। नबी की दर्स को, नबी के पैगाम को हम पहुंचाते हैं, लेकिन हम हालात है हमारे सामने। मैं ये कहता हूं हम घबराएंगे नहीं, घबराते नहीं। बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहा हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। मैं तलबा अजीज से कहना चाहूंगा आप बिल्कुल एहसास कमतरी का शिकार मत हो। सरकार की तरफ से, दुनिया वालों की तरफ से आजकल जितने इम्तिहानात आ रहे हैं, कल आप लीडर है, कल के उलमा है, कल के रहनुमा है, कल के आपके हाथ में इस उम्मत की जिम्मेदारी आ रही है। इसलिए अभी से ये तय कर लीजिए कि रिज़्क़ का मालिक खुदा है, लेकिन अल्लाह ने हमको मुंतखब किया है, हमें कुरान और हदीस से मुंसलिक किया है, हमें इस निस्बत से मुंसलिक किया है। इसलिए हमारी जिंदगी में सबसे बढ़कर नेमत, सबसे बढ़कर खुशनसीबी यही है कि हम ये कह सकेंगे कि हम भाई उसी सिलसिले की एक कड़ी है। हम कमजोर कड़ी जरूर है, लेकिन उम्मीद हम लगाए हुए हैं अल्लाह से। इंशाअल्लाह इस दुनिया के अंदर लोगों की सोच बदलेगी, लोगों की तादाद, मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है और इन बच्चों की रहनुमाई के लिए, मुसलमानों को एक हक का दिशा दिखाने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए आप दुनिया के लालच में, दुनिया के चक्कर में मत पड़िए। हम जाते रहते हैं लोगों की भीड़ में, अगर आप वक्त नहीं है, वरना ऐसे कारगुजारी अगर हम आपके सामने रखेंगे आप रो पड़ेंगे। ऐसे भी बड़े बड़े लोग हैं, मुसलमानों के बच्चों को अपने कब्जे में दुनिया की तालीमात की शक्ल लालच देकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, अमानत में खियानत कर रहे हैं, बुनियादी तालीमात से महरूम कर रहे हैं, कुरान की तालीमात से महरूम कर रहे हैं। ना कुरान की कदर कीमत उनके दिलों में है। इसलिए
ना वही कोई महल बनाता है। इसलिए उलमाए किराम आप लोग खड़े हो जाइए, आप लोग इस मेहनत में रहिए, आप लोग इस सोच के साथ अभी आप परवान चढ़िए कि कल आगे जाकर आपको बहुत से बातिल ताकतों से मुकाबला करना पड़ेगा। इसलिए अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। मैं आखिर में मुबारकबाद देता हूँ। अभी जो रिजल्ट शीट हमारे सामने पढ़ा गया है, जिन बच्चों ने अच्छे नंबरात से कामयाबी हासिल की है, मैं दिमाग के रेशे से, दिल के शूशे से, दिल की गहराई से, दिल के आखिरी शूशे से मैं मुबारकबाद देता हूँ। मैं दुआ करता हूँ, दुआगो हूँ कि दिन दूनी रात चौगुनी अल्लाह ताला आपको तरक्कियात से नवाजे। अल्लाह ताला हमको कहने से, सुनने से, बोलने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।